चलिए, आज मैंने आपको फोटोसिंथेसिस का थोड़ा सा क्विक रिव्यू लेना है और आगे बढ़ना है, जो अपनी फोर्थ स्टेप थी. So let's take a quick review of the chapter that we have already done in yesterday's class. We started with the photosynthesis definition. What was the definition? Simple definition मैंने आपको लिखवाई थी. Anabolic process or enzyme mediated process in which inorganic material converted into organic one or the light energy converted into chemical energy. Agreed? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैडम, उसके बाद मैंने डेफिनेशन में इक्वेशन बताया. वो इक्वेशन आज भी यहाँ लिखा हुआ है. 6CO2 plus 12H2O it gives C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O plus energy. ये इक्वेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते थे. नंबर 1 क्वेश्चन वाज कि ये ऑक्सीजन यहीं से निकल रही है, ये कैसे पता लगेगा? तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया. And that experiment was given by or performed by the scientist name is Neil. और एक था रूबेन एटॉल. एक और थे कौन? रूबेन एटॉल. ओके, तो रूबेन एटॉल साहब ने ये बताया था यहां से करने के लिए. एक्सपेरिमेंट उनका क्या था रूबेन एटॉल का? उन्होंने हैवी वाटर ले लिया था और हैवी वाटर में जब हैवी ऑक्सीजन लिया गया तो उस हैवी ऑक्सीजन से रिलीज भी हैवी ऑक्सीजन ही हुआ, जिससे ये पता लगा कि ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल से ही निकल. दूसरा एक्सपेरिमेंट जो नील साहब ने किया था, H2O की जगह H2S यूज किया गया. बैक्टीरिया का नाम क्या था? Sulfur green bacteria. सल्फर पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया. परफेक्ट. उसके बाद यहाँ पर ये भी जरूरत है कि ये 12H2O क्यों रिक्वायर्ड है? एनीवन? व्हाई 12H2O इज रिक्वायर्ड? Sir, because the product is oxygen is 12 this side. बिकॉज यहाँ पर जो प्रोडक्ट निकल रहा है वो ऑक्सीजन 12 है, तो यहाँ पर एटलीस्ट वो 12 का होना जरूरी था. और इसीलिए उसको बैलेंस करने के लिए ट्रांसपिरेशनल वाटर भी यहाँ पर निकाला गया, दैट इज 6H2O. अग्री डॉक्टर्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैंने आपको ये भी बताया था हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में, बाकी चीजें तो हुई थी डिस्कस, उसकी जरूरत नहीं है मुझे अभी. मैंने साइट और लोकेशन जब बताया तो मैंने आपको ग्रेना और स्टोमा भी बताया, क्योंकि लीफ इज अ मेजर ऑर्गन. इन दिस पहले से टिश्यूज आर देयर, इन मेसोफिल सेल्स आर देयर, organelle chloroplast is there, thylacate grana is there, has 4 complexes, has quantazome and has chlorophyll. Okay, so ultimately the chlorophyll molecule is there. That chlorophyll is the receiver of that sunlight energy that converts into the organic one or the photochemical, I should say. Perfect. तो ये कंप्लीट हो गई थी उसकी साइट. बट ये साइट के दौरान मैंने आपको जो ग्रेनल थाइलाकोइड बताया उसके लिए स्ट्रक्चर भी बताया क्लोरोप्लास्ट का. तो दिस स्टैक लाइक स्ट्रक्चर इज बेसिकली द ग्रेनल स्ट्रक्चर in which they are surrounded by a membrane granule thylakoid and 2 granule stacks are connected with a Fred channel, or I should say Fred channel, or I should say the lamellae, stromal lamellae. That stromal lamellae is basically the connecting between 2 granule structures. और उसकी भी अपनी थाइलाकोइड होती है, लेकिन अपने को यहाँ काम केवल किसका है? ग्रेनल थाइलाकोइड. अंडरस्टूड डॉक्टर्स? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. So we have completed, we are done with. प्रवीण शिरसत, आवाज आ रही है? डॉक्टर शिरसत, आवाज आ रही है? ओके. अयान, आवाज आ रही है? अयान, आमिर, कृष्णा, आवाज आ रही है? Yes, sir. Okay. So definition was done, equation was done, historical aspect was done, site and location was done. In these 4 points, anyone have any doubt? So that otherwise I'll start at the requirement. Any doubt to anyone? No, sir. No, sir. I'll start with the 5th one. All the experiments were done. All the experiments is clear to you, doctors? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The best and colorful experiment was performed by the scientist. What was the name?
T.W. Angelman. T.W. Angelman. What was the experiment? What was the experiment? Sunlight was a pass through Sunlight prism. and prism. Okay. A simple visible light, or I should say the white light, was passed through the prism and focused on the bacterial suspension solution in which there is an alga, developing an alga, which is photosynthesizing. So all the bacteria of that suspension accumulated in the region of blue and red line spectrum. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now I'll start the fifth point, that is requirement. Requirements. मेरे साथ ही लिखते चलेंगे। द रिक्वायरमेंट नंबर 1 क्या लगता है सबसे ज्यादा जरूरी क्या है दोस्तों? Sunlight. सनलाइट। सनलाइट के रेंज में आपको बता चुका हूं, क्या रेंज है? What was the range? That is 390 नैनोमीटर to 760 नैनोमीटर। मेरे साथ ही लिखते चलेंगे। और ये रेंज किसकी है? स्टार्टेड फ्रॉम V to ended on is it Vibgyor? That means V के पहले इधर पे होता है अल्ट्रावायलेट और R के बाद इधर होता है फार रेड। तो ये फोटोसिंथेसिस केवल होना है किसके बीच में बच्चों? दैट इज फ्रॉम इन द रेंज ऑफ Vibgyor. Agreed? Yes, sir. Yes, sir. लाइट की जो रिक्वायरमेंट है मैंने आपको वो बता दिया। अच्छा, सबसे ज्यादा लाइट के केस में, सारी चीजें लाइट में चल रही है, लाइट के केस में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आपको नोट करना होगा। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इज इन ब्लू, whereas maximum action is in red. You need to learn it कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ब्लू लाइट में होता है और मैक्सिमम एक्शन रेड लाइट में होता है। प्लीज नोट विथ मी ओनली, मेरे साथ ही नोट करते चलें। Noted, doctors? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लाइट के केस में आने वाला है क्वांटाजोम, उसकी भी डेफिनेशन लिखेंगे। क्वांटाजोम मेरे साथ ही लिखते चलेंगे, मैं लिख तो नहीं रहा हूं, थोड़ा सा वर्ड में लिखूंगा। क्वांटाजोम पार्टिकल्स फाउंड इन थाइलाकॉइड, particles found in thylakoid, particles found in thylakoid of chloroplast in which photosynthesis takes place, in which photosynthesis takes place. It is composed of lipid and protein. It is composed of lipid and protein. PS1 smaller quantasome, and PS2 is larger one. Noted? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Perfect. लाइट में तो और किसी चीज का जरूरत नहीं है, मैंने लाइट 390 to 760 बता दिया। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ब्लू में सबसे ज्यादा होगा, जबकि फोटोसिंथेसिस एक्शन मतलब जिसमें फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होगा उसे एक्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। परफेक्ट। लार्जर की बात यदि करो तो लार्जर और लॉन्गर में गड़बड़ मत कीजिएगा। PS1 स्मॉलर क्वांटासोम है बट वेवलेंथ लार्जर है। वेवलेंथ
PS1 की वेवलेंथ कितनी है? P700। ये अभी मैंने आपको बताना है लार्जर वेवलेंथ, लार्जर नहीं, लॉन्गर वेवलेंथ। PS2 short. This one, do you know? Yes, sir. Yes, sir. Yes, What is sir. this? Lambda. 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 Which is represented for wavelength, is it? Yes, sir. Yes, sir. सनलाइट की रिक्वायरमेंट में इससे ज्यादा सवाल नहीं आएगा। रिक्वायरमेंट नंबर 2, सनलाइट के अलावा क्या लगता है और किस चीज की जरूरत लग रही है आपको? सेकंड रिक्वायरमेंट, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट किसकी है? CO2। ये कहां से मिलेगा प्लांट को? थ्रू स्टोमेटा। लेकिन इट्स अपटेक नॉट रेस्पिरेशन। इट्स अपटेक नॉट रेस्पिरेशन। ये अपटेक होता है, रेस्पिरेशन नहीं, क्योंकि रेस्पिरेशन में कभी बच्चों CO2 नहीं लिया जाता। रेस्पिरेशन में क्या लिया जाता है? O2 लिया जाता है और CO2 छोड़ा जाता है। कोई भी हो, प्लांट हो, एनिमल हो, इफ इट इज रेस्पिरेशन, O2 will be inhaled and CO2 will be expelled. Perfect? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ स्टोमेटा का डायग्राम बताने की मुझे जरूरत नहीं, क्योंकि मैं पहले भी आपको चैप्टर नंबर 1 बता चुका हूं। इज इट? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, दूसरी रिक्वायरमेंट भी हो गई CO2। तीसरी रिक्वायरमेंट क्या लगती है? वाटर की रिक्वायरमेंट है। थर्ड रिक्वायरमेंट विल बी वाटर। वाटर कहां से आएगा? रूट्स। किस मैकेनिज्म से आएगा? इम्बाइबेशन की ऑस्मोसिस। Osmosis. लेकिन Imbibition. पहला एडजस्टमेंट इम्बाइबेशन से होगा। एक क्वेश्चन भी आया था डीपीपी में, मॉड्यूल में, क्योंकि सेल वॉल डेड होती है तो पहला कांटेक्ट इम्बाइबेशन से होगा, लेकिन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ऑस्मोसिस। Osmosis. अग्री? Yes, sir. परफेक्ट। चौथी रिक्वायरमेंट है बच्चों, जो मेजर रिक्वायरमेंट है, दैट इज पिगमेंट्स। इसके बिना तो काम ही नहीं होगा ना, पिगमेंट्स। अब पिगमेंट की बात करूं तो मेजर 2 पिगमेंट कौन कौन से हैं? वन इज क्लोरोफिल, वन इज कैरोटीन एंड वन इज फाइकोबिलीन। अब इसका अपने को डिटेल पढ़ना, तो सबसे पहले क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर पढ़ना। क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में 2 पार्ट है दोस्तों। एक होता है, सबसे पहले तो समझिए कि क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर क्या है, बस इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट में मैंने सारी बता रहा हूं आपको। सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है पिगमेंट की, उसमें एक स्ट्रक्चर बता रहा हूं क्लोरोफिल। कैरोटीन और फाइकोबिलिन का स्ट्रक्चर हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस में नहीं है, जरूरत नहीं। क्लोरोफिल जो होता है वो टेट्पोल लाइक स्ट्रक्चर होता है। टेट्पोल लाइक स्ट्रक्चर मतलब ऐसा समझ लें, हेड और टेल, या ऐसा समझ, चाहे जैसा समझ लें। ये होता है टेट्पोल लाइक स्ट्रक्चर। इस टेट्पोल लाइक स्ट्रक्चर में एक होता है हेड और एक होता है टेल। मेरे साथ ही लिखते चल रहे हैं आप? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हेड को कहते हैं दोस्तों पोरफायरिन हेड, और टेल को कहते हैं फाइटॉल टेल। 2 अलग अलग केमिकल है, पोरफायरिन और फाइटॉल। पोरफायरिन और फाइटॉल। नोटेड? Yes, sir. अब इसके लिए दोस्तों मेरे को एक स्ट्रक्चर भी, यू हैव मॉड्यूल्स स्टूडेंट्स? Yes, sir. लेट मी चेक, यदि उसमें होगा तो मैं आपको एक इमेज शेयर करता हूँ। एनसी अपना मॉड्यूल खोलिए और मॉड्यूल में क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर दिया है, प्लीज चेक।
एनीवन फाउंड? अरे स्ट्रक्चर मिला क्लोरोफिल का? लेट मी चेक, मैं दिखाता हूं ताकि उसके बाद ही लिखने में मजा आएगा बच्चों। Can you see the screen? Yes, sir. Yes, sir. अब थोड़ी देर के लिए देखिए बच्चों, मैं क्या बता रहा हूं और फिर मैं आपको इससे कनेक्ट करता हूं। जो पहले खोजना था सुन लिया। लेट्स सी, मैंने आपको पढ़ाना है बच्चों रिक्वायरमेंट। पॉइंट नंबर अपना जो 5th था, रिक्वायरमेंट की। फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट किन सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होती है? एवरीवन नोस, फोटोसिंथेसिस है तो फोटोन लगेगा, जिसको फिक्स करना है कार्बन डाइऑक्साइड वो लगेगा, फूड बनाना है तो उसके लिए वाटर को ऊपर चढ़ाना पड़ेगा। मतलब ऐसे। हर्षदा मैडम, एम आई ऑडिबल? चलिए, एनीवेज, तो मैंने आपको सबसे पहले लाइट का बताया, सनलाइट, जो कि रेंज लगती है। जो नीट का क्वेश्चन आता है, सीधी सीधी बात की मैंने, 390 टू 760 नैनो। 390 टू 760 में विबग्योर की रेंज होती है। उस रेंज के बाहर फोटोसिंथेसिस नहीं होता। रेड के बियॉन्ड और वायलेट के पहले इन पर फोटोसिंथेसिस नहीं होता। केवल वो विजिबल लाइट में ही हो सकता है, और वो रेंज होती है 390 टू 760। वो मैंने आपको बताया। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, जो लाइट को एक्सेप्ट करता है, वो क्वांटासोम। और क्वांटासोम जो है PS1 है स्मॉलर, लेकिन स्मॉल से मतलब है लॉन्गर वेवलेंथ, और PS2 में जो है लार्जर वन होता है लेकिन शॉर्टर वेवलेंथ। CO2 की जरूरत पड़ेगी, वो स्टोमेटा से आएगी। वाटर की जरूरत पड़ेगी, वो रूट से आएगी। जो सबसे मेजर पार्ट है दैट इज पिगमेंट। पिगमेंट थोड़ा सा ट्रिकी है, बहुत ज्यादा तो तकलीफ नहीं है। या तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि ये टेटपोल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये टेटपोल लाइक स्ट्रक्चर होगा तो मतलब क्या इमेजिन कर पा रहे हैं कि एक छोटा सा काइट लाइक, मतलब पतंग जैसा स्ट्रक्चर होगा, नीचे टेल लगी होगी। यस और नो? Yes, sir. So this chlorophyll has head and tail. Head is porphyrin head and tail is phytol tail. तो मैं ऐसा कोई स्ट्रक्चर बताऊंगा जिसके चारों कॉर्नर्स ऑक्यूपाइड होंगे और बीच में नाइट्रोजन होगा, मतलब Mg होगा जो नाइट्रोजन से जुड़ा होगा, लाइक दिस। तो ऐसा एक स्ट्रक्चर मैं बताने जा रहा हूं। समझ में आया क्या शो करना चाह रहा हूं? Yes. Chlorophyll, I want to tell you the chlorophyll structure, how head and tails are arranged. Okay. पहले पूरा स्ट्रक्चर देख लीजिए, आपको हेड और टेल दिख जाएंगी। इसके बाद फिर मैं बता, प्लीज चेक। अब देखिए बच्चों, यहां जो स्ट्रक्चर समझने वाली बात है उसको ऐसे समझते हैं। आपको टेल वाला स्ट्रक्चर तो दिख रहा है नीचे, यस और नो? Yes, sir. Yes. Yes. Sir. तो जाहिर सी बात है, टेल समझ में आ रही हो तो बच्चों थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, हेड भी कहीं दिख रहा हो, बराबर? Yes, sir. Yes, sir. अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इस हेड के केस में आपको 4 कॉर्नर पर 4 पीसेस दिख रहे हैं, लाइक 1 2 3 4। पेन से यदि मैं करूं, थोड़ा सा उसको डार्क कर दूं। डार्क कैसे करूंगा? हाइलाइटर ले लेता हूं। चलिए, 1 2 3 एंड 4 दिख रहा है क्या बच्चों? Yes, sir. Yes. Yes, sir. और यदि मैं सही कह रहा हूं तो इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि ये हुआ 1 2 3 और 4, उसके बाद ये टेल। समझे क्या? Yes, sir. मतलब स्ट्रक्चर मोर और लेस लाइक दिस, यस और नो? Yes, sir. Yes. और मोर और लाइक दिस,
Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. I can distinguish Yes, sir. this is as a head and this one is a tail. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ये हेड और टेल जो होता है इसलिए इसको कहते हैं टेडपोल स्ट्रक्चर. नाउ डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट. अब आगे बढ़ता हूं. देखिए, मैंने आपसे कहा 4 कॉर्नर पर 1 2 3 4 कर दिए गए और इन चारों में मतलब जो हेड वाला रीजन है, हेड वाले में 4 पायरोल रिंग आपको जो 1 2 3 दिखाई गई हैं. हर पायरोल रिंग में एक नाइट्रोजन सेंटर की तरफ देखो जरा. प्लीज चेक. 4 पायरोल रिंग्स आर देयर. ये तो क्लियर हो गया. 1 2 3 4. Yes, sir. Yes, sir. हर पायरोल रिंग क्या मिथाइन ब्रिज से जुड़ी हुई? क्या देखिए, CH डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई है. क्या देखिए, Yes, sir. एक, Yes, sir. Sir. 2 3. हाँ मतलब ठीक है, वो तो एक्चुअली इसका ऐसा नहीं हो के ये होना चाहिए था. 3 और फिर CH से चौथी कौन सी जुड़ी हुई है? ये तो खैर रिंग आ गई, प्रोपियोनिक रिंग. ये जुड़ा हुआ है. यस. तो 4 तरफ पर जो आपस में जुड़ी हुई है, 4 porphyrin rings are attached together or linked together by methine bridge. Did you agree? Yes, sir. Yes, Yes, sir. हर पायरोल रिंग, मैंने पहले बताया आपको, हेड में 4 पायरोल और हर पायरोल जुड़ा हुआ है, वो किससे जुड़ा हुआ है? मिथाइन. Each pyrrole ring is joined by methine. यहां तक क्लियर? Yes, sir. परफेक्ट. और हर पायरोल रिंग में 5 एटम है. देखिए, हर पायरोल रिंग में 5 एटम है इंक्लूडिंग नाइट्रोजन. देखिए जरा. अग्रीड? yes, sir. Yes, sir. नहीं समझ आया तो तुरंत बोलेंगे. ईच पायरोल हैज 5 एटम. 1 मतलब दैट इज 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन. क्या खोज पाओगे? Yes, sir. क्या 4 नाइट्रोजन और 1 कार्बन? सही कह रहा हूं? सॉरी, 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन. सही कह रहा हूं क्या मैं? Yes, Yes, sir. sir. 1 2 3 4 और 1 नाइट्रोजन. अग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Everywhere is like this. 1 2 3 4 N. 1 2 3 4 N. 3 N. अब यहाँ पर 3 करके N कर दिया. क्यों? क्योंकि रिंग तो ये वाली थी थर्ड, ये नहीं था, ये था थर्ड वाला. तो यहाँ पर हर, रिपीट कर रहा हूं स्टेटमेंट, जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल इज अ टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर. टेडपोल में इसका हेड होता है, टेल में इसकी टेल होती है, मतलब टेडपोल की टेल जैसा स्ट्रक्चर होता है. हेड और टेल के केस मैंने बताया, हेड हैज 4 पायरोल रिंग्स. ईच पायरोल रिंग इज कनेक्टेड टुगेदर बाय मिथाइन ब्रिज. यहां तक भी स्टेटमेंट क्लियर्स? Yes, sir. अब आप ये देखेंगे, इसमें मैं से मिटा देता हूं. आप ये समझिए कि जो चारों कार्बन्स हैं Yes, उसमें sir. आउटवर्ड प्रोजेक्टेड कितने हैं? जो चारों कार्बन्स हैं उसमें आउटवर्ड कितने वाले? भाई इसको तो मैं अंदर का कंसीडर करूंगा क्योंकि झुका हुआ है, अंदर की तरफ दबा हुआ है. यस और नो? Yes, sir. नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं फिर से बताने की कोशिश करता हूँ. जो नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बोलोगे आप. मैं रिपीट कर रहा हूँ सेंटेंस. Everyone understood what is porphyrin head? Porphyrin is a chemical compound, but did you understand this head? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Perfect. तो जो porphyrin head है उसमें 4 पायरोल रिंग है. Yes or no? Yes, Yes. sir. Perfect. Yes, sir. Each pyrrole ring has 4 carbon. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Each pyrrole ring has 4 carbon and 1 nitrogen towards central. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. That nitrogen is attached with the central metal atom like magnesium. Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir.
in every pyrrole ring there are labeled 1 2 3 4 5 6 7 8. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Because those every 2 carbon in each side, I should say ring, these two are outward. The next one is inward. जो बाहर की तरफ निकले वो एक और ये दो, ये अंदर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है, फिर ये दो बाहर की तरफ निकले हैं. Yes or no? Yes, sir. Yes. परफेक्ट. यदि आपको इतना समझ में आ गया है कि क्लोरोफिल में टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर, हेड और टेल, हेड में पायरोल रिंग्स, पोरफायरिन, और पोरफायरिन में होती है 4 पायरोल रिंग्स. हर पायरोल रिंग में, in every pyrrole ring there are 4 carbon and 1 nitrogen which lies towards the center and bound with magnesium. Yes or no? Yes, sir. sir. Yes, sir. Perfect. So वो जो पोरफायरिन रिंग बनी है, जो हेड रिंग बनी है, उसमें 1 2 3 4 लेबल कर दिया मैंने, और उसके बाद 7वें नंबर का जो 7th नंबर से टेल निकली हुई है, जिस टेल को उन्होंने कहा है फाइटॉल टेल. देखिए ध्यान से, इज इट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो आपसे सवाल क्या पूछेंगे, ये बता रहा हूं कि हेड टेल किससे जुड़ता है, कौन से पोजीशन की कार्बन से जुड़ता है? 7. 7th. परफेक्ट. लेबलिंग आउटवर्ड वाले कार्बन की जाती है कि इनवर्ड वाले? Outward. आउटवर्ड. 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है ना. तो बच्चों सेम स्ट्रक्चर जैसे यहां लिखा गया पोरफायरिन हेड और फाइटॉल टेल. चलिए थोड़ा लिख लेते हैं पहले. It has how many pyrrole rings? 4. 4. It has 4 pyrrole rings, और each pyrrole has 4 carbon, बोलिए. 1 4 nitrogen. carbon and 1 nitrogen. जोर से. 4 carbon and 1 nitrogen. 4 कार्बन एंड 1 नाइट्रोजन. नाइट्रोजन कहां होगा? सेंटर में होगा ना. Yes, sir. Yes, sir. जो 4 कार्बन है, हर इसमें 2, मतलब 4 कार्बन है और हर इसमें से 2 एक्सट्रीम वाले उठाए, तो नंबर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. कुछ भी नहीं करना है बच्चों, बस जो मैंने क्यों इतना लॉजिकल बता रहा हूं, क्यों इतनी चीजों की जरूरत पड़ रही है. क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, इनमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में 3rd पोजीशन पर 7th से तो कौन जुड़ा है? Tail. Cycle. 3rd पोजीशन पर. अब डायग्राम में यदि मैं 3rd पोजीशन बताऊं, देखिए बच्चों 3rd पोजीशन पर यहां पर क्या जुड़ा हुआ है. अच्छा वो मैं मार्कर चला रहा था अभी. 3rd पोजीशन पर यहां पर क्या जुड़ा है, इसको देखते हैं. व्हाट इज दिस? CH3 को क्या कहते हैं? अरे मिथाइल ग्रुप है ना दोस्तों. Yes, sir. यही 3rd पोजीशन पर बेटा यदि एल्डिहाइड ग्रुप होता तो ये हो जाता क्लोरोफिल बी. प्लीज नोट समवेयर, इधर इन एनसीईआरटी और मॉड्यूल, यदि यही एल्डिहाइड होता तो ये हो जाता क्लोरोफिल बी. अभी जो आपको दिया गया ये क्या है? क्लोरोफिल ए. अंडरस्टूड? Sir, can you Yes, repeat? sir. यस आई कैन रिपीट. क्या आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 तक समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब मैंने कहा पहले 3rd पोजीशन की यदि मैं बात करूं तो 3rd पोजीशन पर बच्चों यदि वो CH3 ग्रुप है, यदि वो एल्डिहाइड ग्रुप, 2 अलग अलग ग्रुप है, एक CH3 एक CHO,
CH3 जुड़ा होगा तो क्या होगा और CHO जुड़ा होगा तो क्या होगा, ये मैं बताना चाह रहा था आपको। तो मैंने आपको बताया यदि ये CHO, मॉड्यूल में देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ इट इज CHO इट इज क्लोरोफिल A या B, प्लीज चेक इन मॉड्यूल। So if it is CHO, then chlorophyll B. CHO इन क्लोरोफिल B ना, Yes, sir. बस वही मैंने आपको बताया, क्लोरोफिल B होगा तो एल्डिहाइड। प्लीज नोट, नोटेड। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो मैंने ये बच्चों क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इस पे सवाल बनते हैं सीधे सीधे, इसलिए मैंने बताया। और ये जो 4 रिंग्स है ना, जो हेड में दिख रही हैं, हेड की 4 रिंग में थर्ड पोजीशन पे एल्डिहाइड है कि मिथाइल है। सीधे सीधे पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग या मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट इन विच वन, कैरोटीन, ज़ेंथोफिल, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए। तो इफ इट इज एल्डिहाइड देन इट इज क्लोरोफिल बी, इज इट? Yes, sir. अब देखिए अगला जो आता है किस पोजीशन पर आ रहा है, 7th पोजीशन। 7th पोजीशन पर हेड टेल से बाइंड हो रहा है, इज इट? Yes, sir. परफेक्ट। अब इससे ज्यादा इसमें जरूरत नहीं बच्चों, नोट ये समझ में आया सबको कि नहीं आया, पहले तो ये बताओ। आया सर। आवाज नहीं आ रही मेरे को, तो बच्चे सो गए लग रहा है। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया कुछ? यस सर। Yes, sir. सिंपल है, मैं उतनी ही बातें बता रहा हूं बच्चों जितनी नीट के लिए जरूरी है। सिंपल रिक्वायरमेंट में मैं क्यों इस पे ज्यादा ले रहा हूं पिगमेंट को, इस पे ये सवाल आता है, ये थ्योरी वेरी कुछ नहीं आती, लेकिन हमने लिख लिया बीइंग अ रेजोनेट हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि केवीपीवाई भी हमें देना। लॉन्गर शॉर्टर वेवलेंथ किसकी होती है वो मैंने आपको बता दिया, 680 वाली शॉर्टर वेवलेंथ है और 700 वाली लॉन्गर वेवलेंथ है, उस पर मैं बाद में आऊंगा वो क्या स्ट्रक्चर है। पिगमेंट 3 होते हैं इसमें, ये 2 एक्सेसरी कहलाते हैं, ये मेजर होता है। मेजर में होता है बी और ए। अब बी और ए में डिफरेंस बताने के पहले मैंने ओवरऑल क्लोरोफिल बताया कि भाई क्लोरोफिल यदि होगा तो हेड होगा और टेल होगा, हेड ऐसा टेल ऐसा, बीच में मैग्नीशियम, अंदर की तरफ नाइट्रोजन, बाकी कार्बन 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 कार्बन। तो थर्ड पोजीशन पर जो होगा उस पे यदि मिथाइल है तो क्लोरोफिल बी, सॉरी क्लोरोफिल ए, और यदि एल्डिहाइड है तो क्लोरोफिल बी। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। परफेक्ट। सेवंथ वाला किससे जुड़ेगा? सेवंथ वाला किससे जुड़ेगा? Tail. टेल से जुड़ेगा। दैट्स इट। वो स्ट्रक्चर बनाने और रटने की और कुछ जरूरत नहीं है, मैं इतना जरूर लिख देता हूं कि 7th उससे जुड़ेगा और थर्ड वाला यदि इफ मिथाइल या इफ एल्डिहाइड, कौन सा बी है कौन सा ए? मिथाइल क्लोरोफॉर्म। बस इसको नोट करो, ये हो जाए तो फाइटॉल टेल पर आते हैं। फाइटॉल टेल की जहां तक बात है, ये लॉन्ग क्या था, लॉन्ग ब्रांच, जस्ट मिनट एनसीईआरटी, लॉन्ग चेन अल्कोहल्स। ये याद करना पड़ेगा बच्चों, फाइटॉल टेल ये सब पोरफायरिन केमिकल फॉर्मूलाज है, पोरफायरिन फाइटॉल। तो टेल में फाइटॉल होता है, हेड में पोरफायरिन होता है। ये लॉन्ग चेन अल्कोहल्स हैं, ये 4 रिंग वाले स्ट्रक्चर्स हैं। परफेक्ट। और सवाल जो नीट में पूछा गया है, सिंस प्रोटेक्ट chlorophyll from photoxidation, therefore called shield। बच्चों इसी की टेल की वजह से ही क्लोरोफिल का फोटो ऑक्सीडेशन से बच जाता है। और बच जाता है मतलब यदि फोटो ऑक्सीडेशन हो गया, तेज धूप में यदि ऑक्सीडाइज हो गया क्लोरोफिल, तो ये फूड क्या सिंथेसाइज करेगा, तो उसके फोटो ऑक्सीडेशन से जो बचाता है वो टेल ही बचाती है उसे। चलिए इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। कैरोटीन की यदि मैं बात कर दूं,
ऑरेंज कलर होता है, C40H56 फॉर्मूला होता है, इसका ऑक्सीजन डेरिवेटिव पूछा जाता है कभी कभी, ऑक्सीजन डेरिवेटिव, तो वो हो गया C40H56O2 और उसे कहते हैं कैरोटिनॉइड, कैरोटिनॉइड, दैट्स इट। फाइकोबिलिन की बात करते हैं तो फाइकोबिलिन जो है वो एसेसरी पिगमेंट है जिसमें 3 टाइप के पिगमेंट्स हो सकते हैं, फाइकोसाइनिन मतलब ब्लू, दूसरा होता है फाइकोएरिथ्रीन, क्या लगता है कैसा होगा कलर, फाइकोएरिथ्रीन, एरिथ्रीन कहां पड़ा है, एरिथ्रो, रेड। और तीसरा होता है एलोफाइकोसाइनिन, एलोफाइकोसाइनिन मतलब ब्राउन। क्लास अटेंड नहीं करोगे, आज 44 की स्ट्रेंथ है, कल 6 बच्चे ज्यादा थे, मैं अपलोड भी नहीं करूंगा लेक्चर, इसको नोट कीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। रिक्वायरमेंट वाला पार्ट डन, चेक करते चलिए, कुछ समस्या हो तो मुझे बोलिए। मैकेनिज्म सबसे इंपॉर्टेंट है और आज वो मैं पढ़ा के रहूंगा। Sir, हाँ बोलिए। what you have written after photo? जैसे ये दिख नहीं रहा है फोटो, इसमें मैंने लिखा फोटो ऑक्सीडेशन, जस्ट नाउ आई होप इट्स डन। Yes, sir. परफेक्ट। अच्छा चलिए 2 मिनट के लिए अब सब लोग, इफ यू आर कंफर्टेबल प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास, क्योंकि इसके बाद जो पॉइंट पढ़ाना है मुझे वो है मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म के लिए मुझे देखना जरूरी है कि आप सब लोग अटेंटिव बैठे हैं या नहीं। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। Sakshi is there, Aditya Patil is there, Vedant Sable is there, Anjali Singh is there, Shravani Thakre you didn't on, Madhura भी नहीं ओपन किया, दिनेश शिंदे is there, बहुत बढ़िया, शीतल पवार is there, तनुजा पाटिल ने नहीं किया, अजीत अहिरे ने नहीं किया, अली मंसूरी, गीतांजलि रावताल is there, सुहानी पाटिल is there, ओके। इसके बाद सुहानी पाटिल इज देयर, रौनक थोरात इज देयर, ओके। चलिए, आप सब लोगों में से किसी को नींद तो नहीं आ रही है? गीतांजलि मैडम, सुहानी मैडम, रौनक भाई, परी पाटिल, ग्लोरी, प्रथमेश, ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद श्रावणी ठाकरे, आर यू कंफर्टेबल? Yes, sir. तनुजा, मयूर शिंदे, प्रवीण शिरसत नहीं दिख रहे हैं दिनेश भाई, प्रवीण शिरसत, प्रेजेंट ओके ओके। हर्षवर्धन पवार, जय पाटिल नहीं दिख रहे हैं, पूरा इज फाइन, सार्थक चौहान इज ओके, मयूर वारे, समृद्धि शिरापुरे, हनी जैन, आमिर जैदी, अजीत अहिरे, सिद्धि, अयान, वेदांत, रुद्र भालेराव, ओके, डॉक्टर मोहाड़ीकर इज देयर। चलिए, कंचन वसावे, ओके बहुत बढ़िया। यू कैन स्विच ऑफ योर कैमराज नाउ, आई एम गोइंग टू स्टार्ट। परफेक्ट बच्चों, इसे मिटाऊं और 2 मिनट के लिए पेन वैन सब बंद कर दीजिए। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसकी हद नहीं। 2 मिनट के लिए सब एक्सक्यूज्ड। सर सीन्स प्रोटेक्ट के बाद क्या लिखा है? सिंस प्रोटेक्ट के बाद क्लोरोफिल, CHL डॉट, क्लोरोफिल फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। ओके सर।
शेयरिंग द इमेज और उसके बाद मैकेनिज्म। चलिए दोस्तों, इसे मिटा दूं? Yes, sir. Yes, sir. अब जो मैं बता रहा हूं बच्चों, थोड़ा सा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वो बताने में मुझे भी चैलेंज है, लेकिन अब मैं कुछ कर नहीं सकता उसको आपको। और बहुत अच्छी न्यूज ये है कि शायद नेक्स्ट वीक से क्लासेस ऑफलाइन हो जाएं। इज इट गुड और बैड? Good, sir. Good, sir. Good, Good. sir. Good, sir. ये टॉपिक थोड़ा सा मैं जो बताने जा रहा हूं बच्चों, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझने में तकलीफ जाएगी, इसलिए कह रहा हूं बिल्कुल पेन वेन बंद करके शांति से बैठ जाइए। मैं कुछ बता रहा हूं उसको ध्यान से पूरा फोकस बोर्ड पे रखिए। मैं मैकेनिज्म बता रहा हूं। एज मैकेनिज्म इज कंसर्न, it has only two steps. One is light reaction and one is Dark reaction. dark. लाइट रिएक्शन में पहली रिएक्शन होती है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. और उस लाइट के एब्जॉर्ब करने से अंजलि मैडम फोटोलिसिस ऑफ वाटर। यस और नो? Yes, sir. और उसके बाद यहां पर बनती है एनर्जी प्रोडक्शन। यस और नो? Yes, sir. Sir. और इस एनर्जी का इस्तेमाल होता है डार्क रिएक्शन में CO2 फिक्सेशन। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. इसी को हम कहते हैं अलीसा मैडम CO2 रिडक्शन। यस और नो? Yes, sir. अब सवाल ये उठता है, इन तीनों की वजह से एनर्जी बनेगी कैसे और इसमें वो एनर्जी यूटिलाइज होगी कैसे, बस इतना पार्ट मुझे बताना मैकेनिज्म। लेकिन एनर्जी बनने की प्रोसेस ही बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने आपको साइट बताई थी। साइट वॉज ग्रेनल थाइलाकॉइड। यस? Yes, sir. Okay. This thylakoid has some quantasomes. That was the exact site, quantasome and chlorophyll. Recalled? Yes, sir. लीफ का पैलिसेड टिश्यू के मेसोफिल सेल का ऑर्गेनल क्लोरोप्लास्ट का ग्रेना का थाइलाकॉइड का क्वांटासोम और क्वांटासोम का क्लोरोफिल। अग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. तो वो जो क्वांटासोम है, जहां से क्वांटम फोटोन के क्वांटम जिसने एब्जॉर्ब करने, वो क्वांटासोम है, वो थाइलाकॉइड है। उस थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन की मैं बात कर रहा हूं। तो इस मेम्ब्रेन को मुझे थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा और वो मेम्ब्रेन मैंने कर दी कुछ इस तरह से। ये एक थाइलाकॉइड मैंने उठा लिया, ऐसे समझिए। सो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस थाइलाकॉइड की मैं बात कर रहा हूं वो थाइलाकॉइड ग्रेना की बात मैं कर रहा हूं, ना कि स्ट्रोमा। पहली बात। दूसरी बात मैं कर रहा हूं, ये थाइलाकॉइड जो है ये सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, सिंगल मेम्ब्रेनस। जबकि क्लोरोप्लास्ट जो होता है बच्चों वो डबल मेम्ब्रेनस होता है। आई होप डॉक्टर भावना सिंह मैम ने आपको ये पढ़ाया है। Yes, sir. सो थाइलाकॉइड इज सिंगल मेम्ब्रेनस, लेकिन वो जिस ऑर्गेनल में पड़ा हुआ है वो क्लोरोप्लास्ट इज डबल मेम्ब्रेनस। मैं बात कर रहा हूं सिंगल मेम्ब्रेनस की, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट थाइलाकॉइड। अग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. व्हेन वी वर अली, अयान, धनेश, दिनेश, ग्लोरी, सभी लोग सुने, जब मैं आपको लोकेशन बता रहा था दोस्तों, उस लोकेशन में मैंने आपको 4 कॉम्प्लेक्सेस बोले थे और कहा था कि नाम मैं बाद में बताऊं। अग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. There are 4 कॉम्प्लेक्स। ध्यान से सुनेगा दिनेश भाई, सारा खेल इसी पर होना है। इन 4 कॉम्प्लेक्सेस को मैं कहता हूं 4 चतुर चालाक। 4 चतुर चालाक, बहुत चालाक है। ये कैसे हैं? तो एक है भैया PS2, एक है PS1, एक है साइटोक्रोम
B6F और एक है ATP सिंथेटेज। और मैंने कहा था ना दोस्तों कि मैं बहुत बड़ी बड़ी बात तो नहीं करूंगा, लेकिन ओपन चैलेंज देता हूं पूरे नासिक में कीमियोऑस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस यदि कोई आपको समझा दे रहा हो तो मुझे बताइए। वी आर प्राउड एंड लकी रेजोनाइट्स that we are understanding this concept in such a brilliant way. So there are four और फनी वे में बता रहा था कि ये चार चतुर चालाक जो है वो क्या करने वाले हैं वो भी बता रहा हूं। सो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं, PS1, PS2, साइटोक्रोम B6F और ATP सिंथेटेज। ऐसा नहीं कि 4 ऐसे ही होते, ये तो मैंने रिप्रेजेंटेशन किया। तो थ्रू आउट मेम्ब्रेन पर PS1, PS1, PS2, PS2, ATP सिंथेटेज, साइटोक्रोम थ्रू आउट द मेम्ब्रेन पर होते। मैंने तो एक एक बताना था क्योंकि 4 ही मुझे समझाने हैं, तो मैंने एक एक लेकर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ल्यूमेन, इस पार्ट को कहते हैं ल्यूमेन। इस ल्यूमेन में जैसे ही सनलाइट एब्जॉर्ब किया, इन चारों ने जैसे ही सनलाइट एब्जॉर्ब किया, पहली चीज PS1 P700 नैनोमीटर पे काम कर। जैसे ही सनराइज होता है, जैसे ही सनराइज हुआ वैसे P700 एक्टिवेट हो जाता है। सूरज भाई, जैसे ही सूरज निकला, सूरज भाई सुन रहे हैं मेरी बात? यस सर। हाँ, तो सूरज भाई, आदित्य भाई, जैसे ही आदित्य निकला, जैसे ही ये सूर्योदय हुआ तो P700 एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ जल्दी पहुंचती है, वो लॉन्गर वेवलेंथ होती है। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि सुबह का आसमान थोड़ा सा रेडिश कलर का दिखता है? यस सर। यस सर। इसीलिए ऐसा थोड़ी यार कि वो सिर्फ रेड कलर आए। अरे भाई, रेड की वेवलेंथ ज्यादा है तो आप तक जल्दी पहुंच गई। और ऐसा कभी सोचा है कि वाह स्काई इज ब्लू? नहीं सोचा। काश सोच पाते, क्योंकि ये आसमान इसलिए नीला दिखता है दोस्तों, पानी इसलिए ऊपर से नीला दिखता है क्योंकि नीला स्कैटर्ड ज्यादा होता है। द ब्लू कलर मोर स्कैटर्ड। इसके ज्यादा फैलने की वजह से ही तो सिग्नल्स में ब्लू कलर नहीं होता, सिग्नल में रेड कलर होता है, क्योंकि इसका पेनिट्रेशन ज्यादा होता है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ लॉन्गर वेवलेंथ होती है। तो ये आपको जल्दी दिख जाता है, इसलिए सुबह का जल्दी दिख जाता है और शाम को देर शाम तक दिखता रहता है। इसलिए आपने ये भी महसूस किया होगा कि देर शाम का सूर्यास्त का कलर भी थोड़ा सा रेडिश होता है। इज इट? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो अजीत अहिरे जी, साक्षी मैडम, कृष्णा भाई, ग्लोरी मैडम, अनुराधा, आर यू देयर अनुराधा? यस सर। ओके, वेदांत 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 भालेराव, Yes, sir. वेदांत देवारे, वेदांत साबले, मयूर शिंदे, सार्थक, अंजलि, सिद्धि, कंचन, तनुजा, श्लोक, सूरज, सब सुन रहे हैं? यस Yes, sir. मैंने कहा दोस्तों कि जैसे ही सनराइज हुआ ये P700 एक्टिवेट होता है, फिर जैसे 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 वो शॉर्टर वेवलेंथ और दिखने लगती है, ये दूसरा भी एक्टिवेट हो जाता है PS2, क्योंकि इसकी वेवलेंथ होती है दोस्तों P680। ये 680 पर एक्टिवेट होता है। अब ये मत समझिएगा कि 680 पहले होगा 700 बाद में, भाई वो तो नंबर में बाद में आएगा। पहले तो रेड वाला आ जाएगा ना, विदग्योर की तरफ का, विदग्योर लिखा था अपन ने, रेड वाला पहले आ जाएगा 700। फिर जब PS2 एक्टिवेट हो जाता तो PS1 को फिर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, और बैक्टीरिया में केवल PS1 ही चलता है। कुछ बैक्टीरिया में केवल PS1 चलता है, PS2 चलता ही नहीं। बहरहाल हम तो ये बात कर रहे हैं कि पहले PS1 यानी P700 एक्टिवेट होकर अपने इलेक्ट्रॉन इसने भेजे, वो इलेक्ट्रॉन रोटेट होकर वापस इसके पास आ गए। जैसे ही सनराइज हुआ PS1 एक्टिवेट हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में गए, वापस PS1 में, जबकि थोड़ी देर बाद फिर P680 एक्टिवेट होता है, जो कि PS2 कहलाता है। इससे निकला हुआ इलेक्ट्रॉन PS1 में आता है और PS1 से निकलकर यहां पर एनर्जी बना देता है NADPH2। अभी बताऊंगा डिटेल, मत घबराइए कि सर ये क्या क्या बोल रहे हैं आप। मैंने कहा पहले PS1 एक्टिवेट हुआ, वो रिसाइकल होता रहा,
साइक्लिक मैनर में काम करता रहा, PS1 नॉन साइक्लिक मैनर में काम करता रहा, क्योंकि उसका निकला हुआ इलेक्ट्रॉन उसमें वापस नहीं आया। दो वर्ड क्लियर हुए क्या, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक? Yes, sir. Yes, sir. As the sun rises, the electron from PS1 comes back to the PS1, इसलिए उसको साइक्लिक कह दिया मैंने। जबकि PS2 से चला हुआ इलेक्ट्रॉन इसमें वापस नहीं आया, इसलिए उसको मैंने नॉन साइक्लिक कह दिया, बस सिंपल। But as soon as sun rises, water molecule will break down into 2H plus, 2 electrons and oxygen that comes out as pranavayu. For what? For animals. Those 2 electrons are received by PS2. बात को समझना। Those 2 electrons break down product of water, or photolysis product of water, will receive by PS2. That means PS2 is dependent on water photolysis for the excitement of electron. इसीलिए तो ये बाद में एक्टिवेट हुआ। पहले जो डिपेंडेंट नहीं था वो एक्टिवेट हो गया, अपना वाटर इलेक्ट्रॉन वापस उसमें लाता रहा, काम चलाता रहा। लेकिन जब वाटर टूटा तो वाटर के टूटे हुए इलेक्ट्रॉन्स को PS2 ने रिसीव किया, PS2 से किसी और ने रिसीव किया, किसी और ने रिसीव किया, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती रही। अल्टीमेटली इसके इलेक्ट्रॉन PS1 को दे दिए गए, लेकिन PS1 बोला मुझे इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, मैं अपना साइक्लिक मैनर में काम कर लूंगा, मुझे तुम्हारे इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। PS2 बोला भाई रख ले मेरे इलेक्ट्रॉन, मुझे तुझसे एक मदद चाहिए। Should I repeat? Yes, sir. बच्चों मैंने कहा ना, बहुत ध्यान से समझिएगा, नजर हटी और दुर्घटना घटी। हाइलोगाइट के 4 चतुर चालाक, ये क्लियर हुए? Yes, sir. Yes, sir. PS1, PS2, cytochrome B6F और ATP synthetase. Agreed? Yes, sir. Yes, sir. इन 4 चतुर चालाक ने क्या चालाकी की है वो बाद में समझ में आएगा, कैसे थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन को फंसाया बेचारों ने, लेकिन वो बाद में समझेंगे। अभी सनराइज हुआ, P700 एक्टिवेट हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में गया, वापस उसी के पास आ गया और एक सिस्टम चलता रहा और इसमें एक ATP बन गया, फिर रेड वेवलेंथ के बाद और वेवलेंथ आई, P680 एक्टिवेट हुआ, लेकिन बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन नहीं थे, तो उसने पानी जो टूटा था उस वाटर से कहा कि मुझे तेरे इलेक्ट्रॉन दे। तो इट वॉज डिपेंडेंट ऑन वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। उसके इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, अब बात को समझना, उसके इलेक्ट्रॉन इसने लिए, PS1 से किसी और ने लिए, XYZ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसके उसको नेक्स्ट, अल्टीमेटली किसके पास पहुंच गए? PS1. But PS1 denied. I don't require any electron from PS2. I don't require. I have my own electrons and I can recycle it. I need not any more electrons. But PS2 requested. Jayesh Banjara, please be on mute. PS1 denied, but PS2 requested PS1, please accept my electrons. I need a help from your side. बोले कैसी मदद? बोले भाई PS1, मेरे पास एक एंजाइम नहीं है जो तेरे पास है। बोले कौन सा? बोले तेरे पास एक एंजाइम है NADH dehydrogenase, NADH reductase। तो बोले मैं क्या करूं, मेरे पास है तो मैं क्या करूं? बोले भाई मेरी इतनी मदद कर दे कि मेरे इलेक्ट्रॉन्स तू ले और NADH reductase एंजाइम की वजह से एक काम तू कर सकता है कि बाहर स्ट्रोमा में, ये स्ट्रोमा है ना दोस्तों, कल डॉट से बताया था मैंने। Yes, sir. Yes, Yes, sir. बोले अपने को एक काम करना है, स्ट्रोमा
और ल्यूमेन, इन दोनों के बीच एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप करना है। तो तू क्या कर, बाहर के प्रोटॉन्स उठा ले, इस H+ का इस्तेमाल कर, इस H+ के इस्तेमाल से NADH रिडक्टेज एंजाइम की मदद से NADH को रिड्यूस कर दे और NADH2 बना दे। बोले उससे क्या होगा? तो PS2 बोला भाई NADH2 मतलब 3 ATP बना दिए तूने, अपने को जरूरत पड़ने वाली है CO2 को फिक्स करने के लिए। सो प्लीज एक्सेप्ट माय दोज इलेक्ट्रॉन्स, वो तेरी मदद करेंगे स्ट्रोमा से प्रोटॉन को कम करने में, H+ को यूटिलाइज करने में, और तेरे पास एक एंजाइम है जिसकी मदद से तू NADH को रिड्यूस करके NADH2 बना सकता है, जो अपने आप में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी है। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. मतलब PS1 ने स्ट्रोमा में H+ आयन के कंसंट्रेशन को कम कर दिया क्योंकि यूटिलाइज किया ना। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट। और भाई PS2 ने साइलेंट किलर की तरह, शातिर दिमाग की तरह, चतुर चालाक की तरह इलेक्ट्रॉन को तो ले लिया, तो बाय डिफॉल्ट अंदर कौन बच गया? H+. H+. अंदर कौन? पानी टूटता रहा, H+ जमा होता रहा, H+ जमा होता रहा, खुद ने H+ अंदर बढ़वा दिया, खुद ने अंदर H+ बढ़वा दिया और PS1 से बाहर का H+ कम करवा दिया, है ना चतुर चालाक? यस और नो? Yes, sir. Sir. और इसकी वजह से क्या हुआ बच्चों? एक ग्रेडियंट डेवलप हो गया, इधर H+ ज्यादा, इधर H+ कम, तो एक ग्रेडियंट डेवलप हो गया। यस और नो? Yes, sir. तो H+ ion now want to move outside the stroma. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. चार चतुर चालाक, but this membrane of thylakoid is impermeable to H+. Impermeable to H+. अब H+ बेचारे अंदर पड़े हैं और तीसरी खोपड़ी चली, तीसरा चतुर चालाक साइटोक्रोम B6F, इसने यूबिक्विनोन नाम के कंपाउंड की सहायता से, लिखवाऊंगा सब, यूबिक्विनोन नाम के कंपाउंड की सहायता से बाहर से H+ अंदर भी ले आया। ये अंदर पहले ही बढ़ा रहा था, इसने इसको इंसिस्ट किया तो बाहर के कम हो गए, ये साइटोक्रोम B6F किसी से मिलकर अंदर और बढ़ाने लगा, तो क्या लगता है H+ किधर ज्यादा हो गया, ल्यूमेन की स्ट्रोमा? Lumen. Lumen. Human. Now they want to come from lumen to stroma, but can't because membrane is. Impermeable. Permeable. अब ये बेचारे फंस गए और फिर PS2 कहता है, बोले यदि तुम्हें बाहर जाना है तो मेरे पास एक रास्ता है, मेरा एक प्लेयर यहाँ खड़ा है, मेरा एक भीड़ू यहाँ खड़ा है, तुम चाहो तो तुम उसकी मदद से जा सकते हो, क्योंकि पूरी मेम्ब्रेन में केवल एक वही है जो प्रोटॉन को अंदर से बाहर भेज सकता है। थाइलाकोइड बोले भाई ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे तुमने ट्रैप तो कर ही लिया है, तो मैं उसके थ्रू बाहर निकल जाती हूं, लेकिन बोले एक शर्त है, जब आप बाहर जाओ तो हमारे एक एंजाइम से मिलते हुए जाना पड़ेगा, एंड दिस एंजाइम इज व्हाट? ATP synthesis. ATP synthesis. बोले उससे क्या होगा? बोले तुझे कुछ नहीं करना, तुझे उससे मिलते जाना, और जब वो प्रोटॉन आते समय उससे मिलता है तो एटीपी सिंथेटेज, आपने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा होगा बच्चों, F0 F1 पार्टिकल पढ़ा है क्या? Yes, sir. ऑक्सीजोम पार्टिकल याद करो, एलिमेंट्री Yes. लॉलीपॉप स्ट्रक्चर पढ़ा होगा एक, ऐसा स्ट्रक्चर पढ़ा है? Yes, sir. F0 ऐसी पार्टिकल इसके पास है, और ये जैसे ही उसको मिलता है तो अपने कन्फॉर्मेशनल चेंज की वजह से एटीपी सिंथेसिस के कारण वहां पर दोस्तों सिंथेसिस हो जाता है एटीपी, जो कि मिलता है एडीपी प्लस आईपी, इनसे मिलकर बन जाता है
एटीपी। और यही तो ये सब चार चतुर चालाक चाह रहे थे। कुछ समझे दोस्तों कि नहीं समझे? नहीं समझे? कौन नहीं समझा? जस्ट रेज योर, कौन नहीं समझा? जस्ट रेज योर हैंड्स। अलीसा, अंजलि, जुनैद, सभी नहीं समझे, कोई नहीं समझा। ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चों, मुझे तो पता था कि टफ लगेगा, कोई बात नहीं। PS1 ये बताइए किधर बढ़ा रहा है? ल्यूमेन में इंक्रीज कर रहा है कि स्ट्रोमा में डिक्रीज कर रहा है? ल्यूमेन में इंक्रीज कर रहा है। नहीं भाई नहीं, फिर गलत समझो फिर आप। अरे ल्यूमेन PS1 है ना, PS1 स्ट्रोमा में क्या कर रहा है? डिक्रीज। PS2 क्या कर रहा है? ल्यूमेन में इंक्रीज कर रहा है। परफेक्ट। साइटोक्रोम B6 क्या कर रहा है? H+ आयंस और ला रहा है। ल्यूमेन में बढ़ा रहा है ना? यस सर। और ATPase सिंथेसिस ऑफ एटीपी। अब मैंने इन्हें चार चतुर चालाक इसलिए कहा दोस्तों क्योंकि ये चारों मिलकर इनका टारगेट क्या था? कुछ समझे? Yes, sir. यस सर। मोर इन ल्यूमेन एंड लेस इन Stroma. Stroma. बाय डिफॉल्ट ल्यूमेन से स्ट्रोमा में जाएगा ना फिर? Yes. और Yes, sir. जा सकता नहीं क्योंकि मेम्ब्रेन इम्परमिएबल है। जा सकता नहीं क्योंकि मेम्ब्रेन इम्परमिएबल है, तो जाएगा कहां से? एक ही रास्ता बचा, एटीपी सिंथेटेज। नाम में ही छुपा हुआ है एटीपी सिंथेटेज। तो वो क्या बनाएगा? ATP. एटीपी सिंथेसिस। सिंपल है, एटीपी सिंथेटेज क्या करेगा? एटीपी सिंथेसिस। लेकिन उसको ट्रैप कितने जबरदस्त तरीके से किया, और बेचारा जब वहां से आया तो एटीपी बनाते हुए आ गया। यही तो लाइट रिएक्शन का ऑब्जेक्ट था।